السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ موسیٰ خیل کے علاقے راڑا شم میں 23 مسافروں کو گاڑی سے اتار کر قتل کر دیا گیا۔ ایس ایس پی موسیٰ خیل ایوب اچکزئی کے مطابق تمام افراد کو ٹرکوں اور مسافر بسوں سے اتار کر فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ ایوب اچکزئی کا کہنا ہے کہ مسلح افراد نے بین الصوبائی شاہراہ پر ناکہ لگا کر مسافروں کو بسوں سے اتارا۔ ان کا بتانا ہے کہ مسلح افراد نے 10 گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی۔ پولیس لیویز موقع پر پہنچی اور لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بلوچستان کے علاقے موسیٰ خیل میں مسافروں کو گاڑیوں سے اتار کر قتل کرنے کی دہشت گردانہ فعل کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے موسیٰ خیل میں مسافر بس پر دہشت گرد حملے پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے شہداء کے لیے دعائے مغفرت کی اور شہداء کے لواحقین کے لیے صبر و جمیل کی دعائیں بھی کی۔ کہوٹہ میں میٹا نے حال ہی میں آن لاکنگ دی پاور آف ویب 3.0 بلاک چین اوڈیسی کے عنوان سے شاندار تعلیمی کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اس کانفرنس میں عالمی سطح کے شہرت یافتہ افراد و طلباء جمع ہوئے تاکہ بلاک چین ٹیکنالوجی اور ویب 3.0 کے دور کی جدید ایپلیکیشن پر آگاہی دی جائے۔ کانفرنس میں لیزا آف سی او نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر چیف مارکیٹنگ آفیسر مسٹر لوو نے شرکاء کو بریفنگ دی۔ انہوں نے بلاک چین ٹیکنالوجی کے حوالے سے نئی پیش رفت اور اس کے وسیع امکانات پر روشنی ڈالی، جس کا مقصد نوجوان نسل کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک بہتر مستقبل کے لیے ترغیب دینا ہے۔ سالم اور پھلروان سمیت تحصیل بلوال کے تمام یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ ملازمین بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاج کر رہے ہیں۔ ملازمین کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم جی، میں سر ਤੁਹਾਡੇ ਤਵੱਸਤ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਛੀਨਿਆ ਵੰਜੇ ਜੀ ਔਰ ਮਤਲਬ ਆਵਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹਰ ਆਈਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾ ਕੇ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾए اور ساڑھے اس ادارے جاری رکھا جائے جی۔ میں آپ کے توسط سے وزیر اعظم پاکستان سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یوٹیلیٹی سٹور کے ملازمین کو بے روزگار نہ کیا جائے۔ ہم نے آدھی سے زیادہ عمر جوانی اس محکمے کو دے دی ہے۔ اب ہمارا یہ آگے نہیں ہمیں کوئی روزگار ملے یا ہمارا کوئی نوکری کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عوام کو جو ریلیف ملتا ہے وہ کہاں جائیں، ملازمین کہاں جائیں؟ ہم تو بے روزگار ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ عوام بھی سستے داموں چیز خریدنے سے قاصر ہے۔ تو میں دردمانہ اپیل کروں گا پی ایم سے کہ یہ ہمارا ادارہ کنٹینیو کریں اور اس پہ سبسڈی دیں۔ جہلم کے علاقہ چک براہم روڈ پر 32 کنال اراضی کا کیس دو فریقین کے درمیان جھگڑا تول پکڑتا جا رہا ہے۔ مرزا اشتیاق بیگ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے شاہ نواز نے اپنی جائیداد کا مختار عام مقرر کر رکھا ہے۔ ہمارا کیس عدالت میں زیر سماعت ہے۔ مخالفین پولیس کے ساتھ ساز باز کر کے زبردستی گھر سے نکالنے اور قبضہ کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ متاثرہ افراد نے احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی پنجاب اور ڈی پی او جہلم سے انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جہلم ناصر محمود باجوہ کا کیوڑا سالٹ مائن پنڈ دادر خان چائنیز گارڈ کا دورہ۔ ڈی پی او نے چائنیز انجینئر کے رہائش گاہوں کا کام کرنے کی جگہوں کا دورہ کیا اور چائنیز انجینئر سے ملاقات بھی کی۔ اس موقع پر ڈی پی او نے کہا کہ ملکی تشخص کی بہتری کے لیے غیر ملکیوں کو پرامن ماحول کی فراہمی پولیس کی اولین فریضہ ہے۔ چائنیز باشندگان ہمارے وی آئی پیز مہمان ہیں جن کی سیکیورٹی میں ذرہ برابر لغزش کی گنجائش نہ ہے۔ صالحہ خلیل بلا شبہ جہلم کا فخر ہیں، جنہوں نے انتہائی محنت سے 9 ڈگریاں اور 8 ڈپلومے حاصل کر کے اپنے خاندان، اہل علاقہ اور ملک کا نام روشن کیا۔ گزشتہ روز یوتھ اسمبلی فار ہیومن رائٹس کے مرکزی صدر بابر سنیری کی جانب سے تنظیم کے ضلعی چیئرمین عبدالغفور چوہان نے صالحہ خلیل کو تعریفی سرٹیفکیٹ دیا۔ اس موقع پر سی ای او ایجوکیشن رانا جاوید اختر، ڈپٹی ڈائریکٹر بجٹ اینڈ اکاؤنٹس محمود احمد صابری اور راجہ محمد افضل کیانی بھی موجود تھے۔ جہلم میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر برائے صحت میجر جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر اظہر محمود کیانی نے گورنمنٹ گریجویٹ کالج جی ٹی روڈ کا دورہ کیا۔ کالج انتظامیہ کی جانب سے زبردست استقبال کیا گیا۔ محکمہ بلڈنگ کے ضلعی افسران نے صوبائی مشیر صحت ڈاکٹر اظہر محمود کیانی کو کالج میں بی ایس بلاک ہاکی گراؤنڈ اور سپورٹس گراؤنڈ کی تعمیر کے حوالے سے بریفنگ دی۔ میجر جنرل ریٹائرڈ اظہر محمود کیانی نے کالج میں یادگار پودا بھی لگایا، کالج کے طلباء کے ساتھ وقت گزارا اور ان کے مستقبل کے حوالے سے مفید مشورے بھی دیے۔
झेलम में जीटी रोड अठियारा के मुकाम पर मोटरसाइकिल और शाहजोर के दरमियान खतरनाक तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में एक शख्स और 2 बच्चे शामिल हैं। जाँ बहक होने वाले तीनों अफराद की डेड बॉडीज को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना सदर कसूर के इलाके बाईपास भट्टी अस्पताल के करीब पुलिस मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में एक डाकू हलाक जबकि एक साथी जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। जख्मी डाकू डकैती और राहजनी के 18 मुकदमात में कसूर पुलिस को इंतहाई मतलूब और मुजरिम इश्तिहारी निकला। डीएसपी पतो की मलिक ताहिर सदी की हिदायत पर शहर को ड्रग फ्री बनाने का सिलसिला जारी, जिसके नतीजे में मंशियात फरोशी के मकरू धंधे में मुलविस 3 बदनाम ज़माना मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से 5 किलोग्राम के करीब चरस बरामद कर ली गई। चूनिया सरकारी अस्पताल में वीटीआई स्टूडेंट्स को इंसानी जानों से खेलने के लाइसेंस जारी कर दिए गए। हुकूमत पंजाब की पाबंदी के बावजूद भी वीटीआई स्टूडेंट्स ने डॉक्टरों का रूप ढाल लिया। अस्पताल में आने वाले मरीजों को इंजेक्शन लगाने की वीडियो स्पेशल टीवी को मौसूल हो गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि वीटीआई का नॉन क्वालिफाइड लड़का खातून को इंजेक्शन लगा रहा है। शहरी ने बताया MSTHQ अस्पताल खामोश तमाशाई बड़ा सानहे का इंतजार कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का साफ सुथरा पंजाब का दावा धरा का धरा रह गया। गिरजाघर सरहाली रोड मुस्तफ़ाबाद पर गंदा सीवरेज का पानी खड़ा होने की वजह से स्कूल में आने वाली बच्चियों और नमाजियों और क्रिश्चियन कम्युनिटी को दुश्वारी का सामना है। अहले इलाका का कहना है कि कई बार म्यूनसिपल कमेटी को शिकायत की है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। मियाँवाली में डेरा इस्माइल खान मोटरवे पर ईसा खेल इंटरचेंज से कुंडल इंटरचेंज के दरमियान तेज़ तरीन ट्रैफिक के साथ गधा गाड़ी और मोटरसाइकिल सवारों का सफ़र भी जारी है, जो कि किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकता है। इस सिलसिले में स्पेशल टीवी को मौसूल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरवे पर सरेआम गधा गाड़ी और मोटरसाइकिल सवार देखे जा सकते हैं। दूसरी तरफ ज़राए के मुताबिक इस इलाके में मोटरवे पर पुलिस का गश्त ख़त्म कर दिया गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। चिश्तिया में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला के चेलम के सिलसिले में जुलूस अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ मरकज़ी इमाम बारगाह दर बतूल भट्टा कॉलोनी पर इख्तिताम पजीर होगा। मज़ीद तफसील बताएंगे डॉक्टर मोहम्मद जमील फरीदी। जी जमील फरीदी, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क पाकिस्तान की तरह शहर चिश्तिया में भी जो है चेहलम का मरकज़ी जुलूस जो है वो 28D ब्लॉक से बरामद हो चुका है और इस वक्त नमाज ज़ोहरैन अदा की जा रही है। उसके बाद ये जुलूस अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ मरकज़ी इमाम बारगाह दर बतूल पर शाम 7 बजे इख्तिताम पजीर होगा और सिक्योरिटी के यहाँ पे फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त SHO सिटी A डिवीज़न माजिद इकबाल साहब मौजूद हैं। आइए इन सिक्योरिटी के हवाले से जानते हैं। जी सर, सिक्योरिटी के हवाले से बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको मालूम है कि आज जुलूस चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रवां दवा है, जो कि 28D ब्लॉक से बरामद हो चुका है और जिस तरह आप बता रहे थे कि अपने मखसूस और कदीमी रास्तों पे चलता हुआ शाम 7 बजे इमाम बारगाह दर बतूल पे इख्तिताम पजीर होगा। तो सिक्योरिटी के बारे में बताता चलूँ कि तकरीबन 200 पुलिस ऑफिशियल्स ड्यूटी पे मौजूद हैं, जिसमें स्नाइपर्स, एलीट कमांडोज़ और थाना जो एसोसिएट हमारे थाने हैं सर्कल चिश्तियाँ के, वो ड्यूटी पे मौजूद हैं और इसके साथ साथ दीगर डिपार्टमेंट्स जैसे बल्दिया, वापडा, हेल्थ, 1122, सिविल डिफेंस, ये भी हमारे शाना बशाना है। तो इंशाल्लाह शाम 7 बजे तक हम अपनी ड्यूटी फुल प्रूफ तरीके से सारे अंजाम देंगे। जी, ये थे SHO सिटी A डिवीज़न माजिद इकबाल साहब, जो कि ये बता रहे थे कि सख्त चेकिंग के बाद जो है ज़ायरीन को, अज़ादारान को, मोमिनीन को वो जुलूस में आने के लिए दिया जा रहा है और जगह जगह सख्त चेकिंग के हवाले से बैरियर का भी इंतज़ाम है। किला दीदार सिंह के इलाका अशरफ टाउन में पैसों के लेन देन के तनाज़े पर मुलजिम फयाज ने अपने नामालूम साथी के साथ मिलकर 75 साला अपने ही मालिक को बेदर्दी से कुल्हाड़ी और चाकू के वार से कत्ल कर दिया। मुलजिम अपने साथी समेत फरार होने में कामयाब हो गया। इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंचकर तहकीकात शुरू करते हुए मुलजिम और नामालूम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई। CPO फैसलाबाद DIG कामरान आदिल का चेलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मरकज़ी जुलूस रूट्स का दौरा और जुलूसों के रूट्स और मजालिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात का जायज़ा लिया। मिंशनाबाद में गुज़िश्ता रोज़ कारी की जानिब से मदरसे में तालिब इल्म बच्चों पर बेमानन तशद्दुद का मामला सामने आया था, जिस पर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कर ली थी। मुल्ज़िमान की तरफ से खुद साख्ता वक़ुआ बनाकर और दबाव डालकर प्रेशराइज किया जा रहा है। मज़ीद तफसील बताएंगे स्पेशल टीवी के नुमाइंदे चौधरी इस्माइल। जी इस्माइल, बताइएगा।
گزشتہ روز جو ایک بچے پر بلکہ 3 بچوں پر قاری کی جانب سے تشدد کا معاملہ پیش آیا تھا، اور اس کے بعد جو وہ ملزم پارٹی ہے انہوں نے خود ساختہ کیس کو برابر کرنے کے لیے اپنے بچے پر خود ہی تشدد کر کے تھانہ منچن آباد بھی پہنچ گئے، لیکن پولیس تھانہ منچن آباد کی جانب سے ان کو بے نقاب کیا گیا۔ تو ہمارے ساتھ یہاں پر جہاں کا کہا گیا ہے کہ ہمارے بچے کے ساتھ تشدد کیا گیا ہے، ہم وہاں پہنچے ہیں، ہماری ٹیم وہاں اس وقت اس گھر میں موجود ہے، ان سے پوچھتے ہیں، ان کے جو ہمسائے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ایسا معاملہ ادھر پیش آیا ہے کہ کوئی بچہ ادھر ان بچوں کو ملنے آیا ہو اور اس کے ساتھ تشدد کا معاملہ پیش آیا ہو۔ ہمارے ساتھ جو بچے کے ساتھ تشدد ہوا ہے، جس نے قاری نے جس پر تشدد کیا، اس کے دادا موجود ہے، اس سے بھی بات کرتے ہیں اور ان کے ہمسائوں سے بھی پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی۔ جی وہ میرا جڑا پوترا ہے نا جی وہ پڑھدا مدرسے پڑھتا وہ بال نو کوٹ تے تباہی لا دیتی انہیں جی اون دا حال کوئی بچن دی میں دی کہانی ٹھیک ہے۔ تو الٹا ساڈے تے کیس کر دیتا نے بھئی ساڈے بچے نے مارے نے سارے گوانڈی کسے کو پوجا کسے بچے نے کیس نہیں ہوا آپ پہ، انہوں نے کیس کرنے کی کوشش کی ہے لیکن پولیس نے کیس نہیں کیا۔ پولیس نے کیس نہیں کیا جی تے ہن ساڈا میں گناہ ہے تے ساڈے واپس سانو۔ اچھا ادھر کوئی معاملہ پیش آیا ہے کل کوئی اس طرح کا ادھر ان کا کوئی بچہ آیا ہو؟ اور کوئی بچہ نہیں آیا جی، کوئی بچہ نہیں آیا۔ کوئی بچہ یہ آپ کے ہمسائے ہیں؟ ہاں السلام علیکم جی۔ ادھر کوئی آیا ایسا بچہ ادھر کو معاملہ پیش آیا جس پہ تشدد؟ نہیں جی کوئی معاملہ نہیں، کوئی معاملہ نہیں پیش آیا جی۔ ادھر آیا کوئی معاملہ اس طرح کا؟ نہیں سر کوئی آپ ان کے ہمسائے ہیں؟ ہاں جی ہمسائے ہیں، کوئی معاملہ پیش نہیں آیا۔ اچھا ہمارے ساتھ بچے کی والدہ بھی موجود ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ باجی آپ پہ الزام ہے، انہوں نے آپ پہ الزام لگایا کہ بچہ جو ہے اپنے دوستوں کو پوچھنے کے لیے ان کے گھر گیا ہے اور آپ نے اس کو اس درخت کے ساتھ الٹا لٹکا کر تشدد کیا، ایسا کوئی معاملہ آیا ہے؟ نہیں جی ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں آیا، ہمارے گھر کوئی بھی نہیں آیا ہے۔ ہم تو جی کل 4 بجے سے لے کر رات کے 8 بجے تک جی اسی تھانے ہے گئی سی۔ کل 4 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک آپ تھانے میں تھے؟ تھانے تھے اور یہ بکوا وہ بناتے ہیں 7 بجے شام کا؟ ہم 7 بجے تو گھر بھی نہیں ہے جی، ہم وہ جو ہے گا نا ایس ایچ ان کو ان کا کمرہ آن کر کے دیکھ لیں، ہم تو تھانے میں تھے، میرا میاں اور میرے بچے اور ہم تو تھانے میں تھے۔ تو اور ہماری گھر رہ گئے جڑی ساس مائے گی، ان سے پوچھ لو ہمارے گھر تو نہ آیا ہے تو نہ ہی وہ ہمارے کچھ لگتے بھی نہیں، وہ اور قوم کے ہم اور قوم کے، زیادتی بھی ہمارے ساتھ ہوئی، الزام بھی مجھ پر لگ رہا ہے۔ جڑی ہے پولیس وہ تو ہمارے ساتھ ہے، وہ تو ہماری سپورٹ کر رہی ہے، لیکن ہم سارے کو ان سے پوچھ لیں کہ کوئی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا یہاں پہ۔ کوئی باثر ہیں جو آپ پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ جی ہمارے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ صلح کریں، لیکن صلح تو کر رہیں گے لیکن ہمارے بچے کا تو کچھ کرے نا، جو سر مار رہا ہے ان کا تو سارے نہیں چون رہا، اتنا سر ہاں جو انہیں سر تو چھوٹا مارا انہیں سر جنہوں نے پھیس گیا ہے۔ اچھا ہمارے ساتھ ہمسائے اور بھی موجود ہے۔ السلام علیکم۔ اچھا ادھر سے جو وہ گاؤں ہے جس بچے کا یہ بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ اس پہ تشدد کیا گیا، وہ کتنی دور تقریباً پڑتا ہے؟ وہ جی پڑتا ہے تقریباً 2 کلومیٹر تھی، بستی جو ٹالی والا ہے وہاں سے وہ کہتے ہیں ادھر ہے 4 کلومیٹر، 4 سے 5 کلومیٹر کے فاصلے کوئی پہ نہیں آیا جی، سب بکواس ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول کوئی ایسا معاملہ ادھر پیش نہیں میں آیا؟ گوانڈیاں بالکل میں ہر پاس میرے نگہ پابندی کرے، صحیح، کوئی نہیں آیا۔ اچھا یہ سامنے والے ہمسائے ان کی دیوار بھی چھوٹی ہے، اس گھر والا بھی ادھر کوئی ہے؟ اچھا یہ آپ کا بالکل سامنے گھر ہے، یہ دیوار بھی بالکل چھوٹی ہے، آر پار نظر پڑ رہی، ادھر کوئی معاملہ ایسا پیش آیا ہے؟ خدا دی اسا ویکھی نہیں، ایسا تو کوئی نہ بندہ ویکھا نہ سائیں ویکھا نہ بوڑھی، وہ تھانے کوئی بندہ ہی نہیں ویکھا ہے، انہاں دی ماں بوڑھی جی پھردی بس، اور تو چھائیں کہاں اماں جی پھر رہے ہیں اور کوئی بھی گھر نہیں کوئی گھر بندہ ہی ایسا معاملہ کوئی ادھر پیش کوئی نہیں شے نہیں آئی، سوتے تک وہ ایک بیچاری اکلی بیٹھی رہی کرے، سوتے تو پیچھے آئے اگے کوئی بندہ چھینو ایسا ویکھا ہی نہیں، تو نہ کوئی آیا تو نہ کوئی گیا تو نہ کوئی کیا کہتے ہیں انہوں نے خود نے یہ ایسا معاملہ بنایا ہے؟ خود نے جڑا کر رہے ہیں اگو ٹھل دین بے اگو روک جاون بس، جڑا وہ مولوی نے بچا دین، مولوی نے بچا دین بھی بچ جائے، اور بچوں پہ بھی تشدد کرے، اور بچہ نے تباہی پھیر سٹے، مارے بچہ نہ حالات بیڑی کرے، مسلمانی کو گال کیتی کھڑے، اے ہو ہی نہیں رہی، میں تو کوئی شے ویکھی کا نہیں، کسے ہمار دیا کات دیے نکی نکی، کوئی بندہ چھینو نہیں ویکھا۔ جیسا کہ آپ ہمسایوں کی بھی بات سن رہے تھے، گھر والوں کی بھی بات سن رہے تھے، الزام ہے بچے جو جن پہ قاری نے تشدد کیا ہے
उनकी वालदा पे इल्ज़ाम है कि इधर उन बच्चों को पूछने के लिए कोई बच्चा आया है और उस पर इन्होंने तशद्दुद किया है, लेकिन वालदा का जो मौक़िफ़ है वो कह रही है कि मैं 4 बजे से लेके शाम 8 बजे तक SHO के कमरे में थी। उन्होंने हमें बुलाया हुआ था क्योंकि हमारे बच्चों पे तशद्दुद किया गया है, ज़ालिमाना तशद्दुद किया गया है, जिसकी वजह से हम वहाँ थे, हम घर में ही नहीं थे और हम पर ये जो इल्ज़ाम लगाया गया ये झूठ है। और हमसायों का भी मौक़िफ़ आप सुन रहे थे, बिल्कुल ये सामने वाली छोटी दीवार है, आर पार नज़र पड़ रही है। उनका भी कहना है कि हमने इधर कोई ऐसा मामला नहीं देखा, बल्कि घर में खुद एक जो बच्चे की नानी अम्मा है वो मौजूद थी, दादी अम्मा मौजूद थी, लेकिन कोई इधर ऐसा मामला नहीं पेश होया। ये खुद साख्ता मामला बनाया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है ताकि ये खामोश हो जाएं और वो जो कारी है जिसने बच्चों पे तशद्दुद किया है, ज़ालिमाना तशद्दुद किया है, उसको बचाया जाए। लिहाजा जो पुलिस मिंचनाबाद SHO वाला साहब भी इनकी फेवरेज कर रहे हैं, इनकी सपोर्ट कर रहे हैं। ज़ाहिर है पुलिस सब जानती है, झूठ झूठ और सच सच होता है, तो लिहाजा जो आला हुकाम है DPO बहावल नगर है इस पर नोटिस ले और जो उन्होंने ये खुद साख्ता मामला बनाया है उन पर 420 की FIR भी दे। जी। गुजरावाला में DG फूड अथॉरिटी की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमों का एक्शन, मारूफ ब्रांड्स और डेयरी शॉप्स पर छापे। सैटेलाइट टाउन, हिमिल्टन रोड, ख्याली, निगार फाटक, घक्कड़ और वजीराबाद के इलाकों में फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई। खिलाफ वर्जियों पर 3 लाख से जायद के जुर्माने आयद, 1 पॉइंट की प्रोडक्शन बंद जबकि 1 मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 2664 ममनुआ गुटखा पैकेट और भारी मिकदार में एक्सपायर्ड अशिया तल्फ कर दी गई। इस मौका पर DG पंजाब फूड अथॉरिटी ने कहा कि खरीदारी से पहले मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी तारीख लाजमी पढ़ने की आदत अपनाएं। रावलपिंडी से आज़ाद कश्मीर जाने वाली कोस्टर ब्रेक फेल होने के बायस गहरी खाई में गिर गई। इतला मिलते ही रेस्क्यू और प्राइवेट एम्बुलेंसेस जाए हादसा की जानिब रवाना कर दी गई। कोस्टर में सवार 24 अफराद में से 1 ज़ख्मी जबकि 23 अफराद मौका पर ही जाबाहक हो गए। ज़ख्मी को तिबी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट हस्पताल रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया, जो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ दिया। चेयरमैन बोर्ड मतरूका वफ़द इमलाक बोर्ड सैयद अताउर रहमान ने दयाल सिंह ट्रस्ट लाइब्रेरी लाहौर के तज़ीनो आराइश और मुरम्मती काम मुकम्मल होने के बाद इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन बोर्ड का कहना है कि 116 साल कदीमी विरसा को महफूज और मजबूत बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। दयाल सिंह की वसीयत के मुताबिक ये लाइब्रेरी वजूद में आई, जो कि पाकिस्तान की कदीम और बड़ी लाइब्रेरी में से एक लाइब्रेरी है। वजीराबाद अलीपुर चट्टा में पक्की ड्यूडी के बाहर करियाना की दुकान में डकैती की वारदात। 2 डाकू दुकान में सिगरेट लेने के बहाने दाखिल हुए और असले के जोर पर दुकानदार से 18,000 रुपये लूट लिए। फोर्ट अब्बास में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के शहर भर के मेडिकल स्टोर्स पर छापे। अतायत के खिलाफ कार्रवाई करने पर केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी। तहसील भर के तमाम मेडिकल स्टोर्स बंद कर दिए गए। इस मौका पर डॉक्टर अब्दुल रऊफ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने कहा कि किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं करेंगे और अतायत के खिलाफ कार्रवाइयाँ भरपूर तरीके से जारी रखेंगे। मंगला रोड दीना पर वाक़या वापडा ऑफिस के स्क्रैप यार्ड में आग लगने की इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौका पर रवाना कर दी गई और आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने का वाक़या शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आया। DPO कसूर मोहम्मद ईसा खां की हिदायत पर पुलिस का रात गए भारी नफरी के साथ ग्रैंड सर्च ऑपरेशन, जिसके नतीजे में 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 मंशियात के मुकदमात दर्ज करके 4.5 किलोग्राम चरस और 30 लीटर शराब भी बरामद कर ली गई। नाजायज असलहा के 2 मुकदमात दर्ज करके 2 पिस्टल और 1 बंदूक बरामद कर ली गई। चूरिया में करंट लगने से जख्मी होने वाले प्राइवेट मजदूर नासिर के दोनों बाजू कट गए। नासिर को तशवीशनाक हालत के पेश नज़र लाहौर जिना हस्पताल रेफर किया गया था। 3 रोज़ कबल जख्मी नासिर लेस्को SDO अमजद और लाइनमैन अकरम के कहने पर 11,000 kV तारों की मुरम्मत कर रहा था। नासिर ने कहा कि SDO अमजद ने कहा कि ग्रेड से बिजली बंद है, जबकि बिजली बंद ना थी। करंट लगने से मैं बुरी तरह झुलस गया। 1:30 बजे मैं अकरम की SDO की कॉल आई है। मैंने पूछा कितने है, मैं गया भी मैं कंदूरंगड़ की करदा मीटर लादा फिर कहना बिजली बंद है पुत्र, भज के आ बिजली बंद हो गई है तो असीं भी उत्थे साइड ते पहुँचने पे तो तुसीं भी आइयो। मैं उत्थों आया जी बैड़वाल तो सीधा नार सीधा अपने कोटगामे वाली साइड ते कोटगामे वाली साइड ते जदों आया तो ये तो मौजूद ने मैनू कहते भी जल्दी च वड़ के तेरा जंपर खोल, ड्यूरेशन पैंदी पी फीडर बंद 1 घंटा हो गया, डेड शाट पिया तो फिर इन्हें डेड शाट ले देना, फिर क्लीयरेंस देनी पैंदी, सर्टिफिकेट देना पैंदा ते ना ऑन नहीं करना।
ਮੈਂ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਫੀਡਰ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ ਕਿਹਾ ਫੀਡਰ ਬੰਦ ਹੈ ਤਾਲਾ ਲਵਾਇਆ ਟਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਫਿਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿੱਲੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਬੈਲਟ ਪਾਈ ਹੈ ਬੈਲਟ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਠਾ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਪੁੱਠਾ ਲੰਮਾ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਗੋਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਮਾਸ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਐਵੇਂ ਜਲ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੈਲਡਿੰਗ ਰਾੜ ਨਾਲ ਸਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਤੇ ਉਤਾਰ ਕੇ आर्जी तौर पर कैंट च लिया के आंदा ने। ज़ख्मी नासिर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। मुस्तफ़ाबाद ललियानी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के अहकामात जारी होने के बावजूद मेन फिरोजपुर रोड के सर्विस रोड पर अरसा दराज से कायम नाजायज़ तजावुज़ात ख़त्म न हो सकीं। इंतज़ामिया की जानिब से मुतअद्दिद बार तजावुज़ात कायम करने वाले कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया, लेकिन मामला जूं का तूं ही रहा। अहले इलाका ने DCO कसूर और आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। मुल्क भर की तरह बुआना में भी चिल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौका पर मातमी जुलूसों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों से मातमी संगतें पैदल काफ़िलों की सूरत में बुआना पहुँच रही हैं। टंडुवाला यार में चिंबड़ रोड पर तेज़ रफ्तार गाड़ी ने मदरसे के बच्चे और रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे के नतीजे में 3 ख़वातीन और 4 बच्चों समेत 8 अफराद ज़ख्मी हो गए। इलाका मकीनों ने ज़ख्मियों को अपनी मदद आपके तहत हस्पताल पहुंचा दिया। कराची के इलाका कोरंगी मसाइल का गढ़ बन गया, जहां पीने के लिए पानी भी मुयस्सर नहीं है। मज़ीद तफसील बताएंगे आसिफ नवाज़, जो कि इस वक्त मौजूद हैं। आसिफ, बताइएगा। कराची के इलाके कोरंगी 51C के अंदर आवाम जो है वो मसाइल का शिकार हो गई है। ना पीने को पानी साफ़ मिलता है और ना ही बिजली मुयस्सर है। लोगों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। हमारा 51C ये कहलाता है, हमारा इलाका सारा ये जो है ना 51C कहलाता है। ठीक है, पानी का मसला है। आपके सामने हमारे बच्चे बड़े आवाम खड़ी है, लेडीज़ खड़ी है, देख लो कि क्या हाल है। 2 घंटे लाइट आती है, 2.5 घंटे जाती है, 1.5 घंटा आती है तो 2 घंटे जाती है। अभी भी लाइट गई हुई है, सुबह भी जाती है, फजर की नमाज के टाइम, रात को जाती है। बताओ मुझे, हम ड्यूटी करके आते हैं सोने के टाइम, 11 बजे जाती है, 1 बजे आती है। सुबह 5 बजे चली जाए, 6 बजे चली जाए, वो कोई पूछने वाला नहीं है। बिल 10,000 12,000, हाथों से कपड़े धो के। बताओ ये पानी जो बिक रहा कंटेनरों पे कहाँ जा रहा है? ये जो कंटेनर भर भर के जो ये कहाँ से आ रहा? जो हम परेशान हैं, हम क्यों परेशान हैं बताओ ना भाई। आ ही नहीं रहा पानी, 6 महीने हो चले पीने के लिए तरस रहे हैं। अब तो वैसे भी नहीं आ रहा। धाबा जी पे लैंड टूट जाती जब बड़ों को ज़रूरत होती है। भाई ये वो नाव सा कोरंगी नंबर 6 51C का एरिया है, सही है। इसको जंजालपुरा भी वो नाव का बोला जाता है। यहाँ पे लाइट का भी काफ़ी मसला है। लाइट हर 1.5 घंटे के बाद लाइट जाती है, हर 1.5 घंटे के बाद। पानी को वो नाव का 6 महीने हो गए, कोई नहीं कर रहा। सियासत की अगर वो नाव का अगर आप बात करो, MKM हो, PP हो, जमात इस्लामी हो, चाहे कोई सी भी हो, XYZ, चाहे इमरान खान, कोई सा भी हो, सब ने कराची से खाया है, कमाया है। बनाया किसी ने नहीं है कराची को किसी ने भी नहीं बनाया, सही है। ये हमारा हाल है। यहाँ से लेके आप ये इसकी वीडियो बनाओ, यहाँ से ज़रा आप वो ना उसका वीडियो बनाओ। ये अपनी मदद आप कहते थे, हमने खुद सही किया है। ये आवाम सारी साथ खड़ी हुई है, सही है। ये 20 साल हो गए यहाँ पे, ये खुद अपनी मदद आपके तहत हमने ये रास्ते सारे सीधे किए हैं। किसी ने भी आके यहाँ पे कुछ नहीं किया। अब हम आप खुद बताओ कि हम किसको बताएं भाई। सबको वो ना उसका दरख्वास्त लगाती हैं, कोई नहीं आता इधर। मैं आपको क्या बात कर रहा हूँ कि सियासी की अगर आप वो ना से बात करो तो सब ने खाया है, सबको वोट चाहिए, वोट सबको वो सब चाहिए, लेकिन काम करने कोई नहीं आता। सब वोट के टाइम पे आते हैं और कोई भी नहीं आता यहाँ पे। ये कोरंगी नंबर 6 और एरिया 51C का पड़ता है, सही है। और तकरीबन 6ठा दिन है काम पे से आओ और पानी भरना हमारा ये दूसरा काम है। खाना बाद में खाना, पहले पानी भरना है। 6 दिन से परेशान हो रहे। धाबी जी की लाइन टूट गई थी, फिर दोबारा बनी है, फिर सुनने में आया फिर टूट गई। लेकिन टैंकर माफिया धड़ाधड़ चल रहा है, उनके नलकों में पानी कैसे आ रहा है, उनकी लाइन नहीं टूटती। सिर्फ हम लोग गरीब लोग परेशान हो रहे हैं। और ये ऐसा लग रहा है कोरंगी का शहर कराची का एरिया नहीं है, किसी गांव देहात का एरिया लग रहा है। जो बर्मा हमको बचपन में यूज़ करते हैं, आज हमको दोबारा यादें ताज़ा हो गई। दुनिया तरक्की पे जा रही है, हम लोग दोबारा बर्मे पे आ रहे हैं। लोगों का मज़ीद ये भी कहना था कि बारहा दरख्वास्त देने के बाद भी हमारे मसाइल को हल ना किया जा सका और अब हमारा कराची कोरंगी 51C गाँव की शक्ल इख्तियार कर गया है। कैमरामैन फरहान शाह के साथ आसिफ नवाज़, स्पेशल TV, कराची।
खैरपुर गुंबट के करीब 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक जबकि 2 जख्मी हो गए। ठट्टा में सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध जावेद सिबगतुल्लाह महर ने खवातीन को बिलासूद कर्जों की फराहमी और गुर्बत में कमी के लिए हुकूमत सिंध के ताउन से चलने वाली समाजी तंजीम सरसों मकली के दफ्तर का दौरा किया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने जावेद सिबगतुल्लाह महर का शानदार इस्तकबाल किया और सिंध की सकाफत अजरक के तोहफे पेश करके तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर तारिक कोराई और दीगर अफराद भी मौजूद थे। माचका में कांस्टेबल अहमद नवाज को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। 2 रोज कबल कच्चा माचका से डाकू कांस्टेबल अहमद नवाज को साथ ले गए थे। कांस्टेबल अहमद नवाज की बाजियाबी से उसके वरुसा में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने पुलिस की दाद को खूब सराहा। उमरकोट में 10 से जायद संगीन मुकदमात में इंतहाई मतलूब मुलजिम फायरिंग के तबादले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। SSP उमरकोट आसिफ रजा बलोच के अहकामात पर मजीद कार्रवाइयाँ जारी हैं। सेवन शरीफ में 4 घंटे के एहतजाज के बाद SSP जाम शोरों ने मुकदमा दर्ज करने की हिदायत जारी कर दी। मुकदमा साबिक SHO मजहर नायद, 6 पुलिस अमलदारों और 3 सिविल शहरियों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद इंडस हाईवे रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। जुड्डो से मीरपुर खास तक चलने वाली लूप लाइन ट्रेन को बंद हुए 25 साल का अरसा गुजर चुका है। ट्रेन ना चलने के बायस चोरों ने रेलवे ट्रैक की पटरियां उखाड़कर कबाड़ में बेचना शुरू कर दी। फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि पटरियां काटने के बाद एक जगह पर जमा कर रखी हैं। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।